So Siddharth, Sushant, and Cooper Hospital. That's the focus of the show. We are into our next segment. That's Speak Up Q&A, which is a platform for all of you to come and speak. I want a lot of people who are especially new to come and speak. Yesterday, a lot of people could not. YouTube में कुछ टेक्निकल इश्यूज भी थे जिसके कारण मैं वीडियो शेयर भी नहीं कर पाया कल वाला. आज शाम को जाकर वो लार्जली एड्रेस हुआ, अभी पूरी तरह से एड्रेस नहीं है. तो YouTube में हो सकता है आपको वीडियो में प्रॉब्लम हो देखने में, या फिर मैं कोशिश करूंगा कि somehow I can coordinate with YouTube and I can set it right the way they have set it right in the afternoon. तो अगर कोशिश करूंगा कि वो आपको मिल जाए, बट फिर भी अगर नहीं मिले तो Facebook is always there, आप वहां जाकर पूरा वीडियो देख सकते हैं. अदरवाइज YouTube पे तो सर्टेनली आपको ओरिजिनल वीडियो तो मिलेगा ही, बट जो मैं एडिटेड वीडियो डालता हूं उसको मिलने में शायद आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन कोशिश करेंगे कि वो भी मिलेगा. सो प्लीज डू कम एंड ज्वाइन एंड स्पीक अप कि व्हाट डू यू थिंक ऑन द चेंज दैट हैज हैपेंड बिटवीन जून 14 2020 एंड सितंबर 2 2021. ये फर्क जो मैं कह रहा हूं कि आपने महसूस किया या फिर आपके मुताबिक कोई और चीज है. तो इस फर्क पर 14 महीने का फर्क, अगर और भी कोई फर्क है, एक बॉलीवुड का फर्क बताया मैंने, एक आपको मैंने बताया कूपर हॉस्पिटल का फर्क, एक बताया मुंबई पुलिस का फर्क. इसके अलावा भी अगर कोई फर्क है तो आप आकर उसके बारे में बात कर सकते हैं. आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड द लिंक विद यू, सो यू कैन क्लिक ऑन दैट लिंक एंड कनेक्ट. Ariman has joined. Ariman, I think he came and then he just went off. So Ariman I would have taken. So please quickly join and speak what you think. Kritika is saying that सर ये डर लोगों का नहीं सर, इस बात का है कि गलती पकड़ी ना जाए. बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कृतिका. गलती तो करेंगे, जब कहां जाएंगे अब ध्यान से. अच्छा ओके, गलती तो करेंगे लेकिन अब ध्यान से करेंगे. कृतिका, ये बात कि गलती का ही डर है या पकड़े जाने का डर है, तो ये डर आप लोगों के कारण है और ये बहुत जरूरी था ये डर, क्योंकि अगर ये डर नहीं होता तो फिर मैं सब नहीं हो रहा है तो इसकी आपका डर है, आपके प्रेशर का नतीजा है कि बॉलीवुड के वो लोग जो चुप बैठे हुए थे आज रिएक्ट कर रहे हैं. रिंकू हैज जॉइंड, सो लेट्स स्टार्ट विद रिंकू ओनली. Senthil, Dr. Senthil is also joined. Dr. Senthil is not practicing doctor, but he's a doctorate, and I keep referring to him as doctor because whether it's a practicing doctor or a PhD holder or an honorary doctor is a doctor. So I give that respect to him. But both Dr. Senthil as well as Rinku has joined. So let's start with Senthil first. Rinku, आप 2 मिनट के कल आप बात की थी, पहले उनको लेता हूँ फिर मैं आपको लेता हूँ. आप जरा 2 मिनट का वक्त दीजिए. Yes, Dr. Senthil, let's start with you. एक सेकंड. हाँ बोलिए, आपको आवाज आ रही है सेंथिल? Yes, I'm able to hear. Please go ahead, बोलिए. Congratulations, Sunil ji, and congratulations to every SSRians and the effort we started. And the last 14 months, we were feeling disappointed that we are not getting justice. I think we have started getting justice, and this is what you said, Sunil. I was very keen to know what happened, and thank God I came and heard you because in your channel I'm able to hear the truth, and you go step by step and very educate you. Because I go through several channels, I don't understand. It's so confusing. When I come to hear you, you get a correct picture, and thank you so much for presenting the facts. Thanks a lot. And congratulations to you also. Congratulations to all of us. And this is the victory for all of us. We need to celebrate. No, if you're making a change, I think that's most important. Yes, and that is what I am sure the soul of Sushant also wants. This is what he wanted. Good for the country, good for all of us. And regarding Siddharth, whether there was any conspiracy or whether he had a natural death, that is something we need to have patience and wait. Let us not jump into conclusions. Otherwise, it will lead to a lot of people get into depression and disappointment. And no, that's not. I think Senthil, my point of view is different. मुझे ऐसा लगता है कि जब आप जंप करके पहले ही करने लगते हैं तो आपका जो लॉजिकल पॉइंट होता है ना वो वीक हो जाता है. लोग कहेंगे इनकी तो आदत हो गई है, ये कहीं पर भी सवाल उठाए थे. तो पहले आप वेट कीजिए फैक्ट्स को आने का. अगर कुछ होता है तो आप बोलिए, वरना आपको जहां पर लगता है गड़बड़ है, जैसे सुशांत सिंह राजपूत केस में गड़बड़ हो रहा था और आप लोगों ने सही उठाया, उसका नतीजा है कि आज मुंबई पुलिस भी बच के काम कर रही है.
कूपर हॉस्पिटल भी बच के काम कर रहे, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री भी बोल रही है। तो ये जो है ना वो उस करेक्ट प्रेशर का नतीजा है जो आप डाल रहे हैं। अगर आप बेमतलब में सारी चीजों में कॉन्स्पिरेसी ढूंढने लगेंगे तो आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू डाइल्यूट हो जाता है। दैट्स व्हाट आई फील। And Sunilji, can I also add one point regarding the exercises and people dying? And there is a wrong concept which has come to the country. If you have to get into the film industry or entertainment industry, you need to have 6-pack and 8-pack, all that. And because of that, there are a lot of proteins and protein diets which are taken, which is so dangerous for the health. Why I'm saying this is because I got into nutritional supplement. I was a weight loss coach for 6 years in Dubai. I helped 6,000 people to lose weight. That's why I got DLEAT, which is honorary doctorate. And I'll tell you what happens is, you have the lungs, which are on the top, and below that you have the diaphragm. And God has not given any bones towards the stomach region so that the stomach can expand, so that the diaphragm can expand, which allows the lungs to go down and inhale more oxygen. Correct. But now what happens is you make the stomach portion tightened and become like a rock solid. Then the diaphragm is not able to extend, so the chest region So the expands, basic pressure on the heart. Yeah, And that is the reason. basic human functioning gets, body Yes. functioning gets And disturbed. you please remember, less oxygen goes to the brain. That leads to a lot of head pain and a lot of mental issues. And you will see that most of the people, I'm talking about the top heroes, whether it is Hrithik Roshan or Salman Khan, Shah Rukh Khan, all of them had some brain issues and they had brain surgeries. So I suggest people, to do natural walking. Don't go for these abs, creating abs. It is not natural. And we are missing out great actors and actresses. Imagine today Hema Malini would have born. She cannot come to the film land. And Saukar Janaki, so many heroines, Absolutely they correct. were not slim. They were not zero size. And also actors, even Dharmendra or many of the actors, Sanjeev Kumar, and even Raj Kapoor, none of these people would have become actor if they all would have gone for 6-pack and 8-pack and they would have given up. No, So we are missing Dharmendra out naturally on developed many a of this, 6-pack. and we need to change the trend. We need to look at acting. We need to look at realistic people. Unfortunately, there is so much of pressure on the people who want to come into the entertainment industry, and they start doing these exercises and they start taking multivitamins which are not natural. They do protein diets, and then finally they take tablets for amino acids. All of this is so bad for health. Just to look good, you are killing yourself. And if this is not a murder, I see that it has happened because of these things. So if you're mother, if you're parent, and if you're a youngster who want to pursue your career in entertainment industry in future, we people are there. We don't want zero size and we don't want 6-pack and 8-pack. We will watch you movies as long as you have good films, good stories and good body. सेंथिल, समीर सोनी ने एग्जैक्टली वही कहा जो आपने कल कहा। समीर सोनी और उसके अलावा एक और फिल्म पर्सनैलिटी थे जिनका वीडियो कल शेयर हुआ था, मैं नाम भूल रहा हूँ। उन्होंने एग्जैक्टली कहा कि आप जैसे हो वैसे ही दिखो ना, हम उसी में एक्सेप्ट कर लेंगे आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आप पर प्रेशर डाल रहा है। आपको जो बेहतर दिखने का, परफेक्ट दिखने का जो आपकी कोशिश है, वो आपको डिस्टर्ब करती है आपके लाइफस्टाइल को, और उसके कारण बहुत सारे इश्यूज होते हैं। सो जो बॉलीवुड दिखता है एक्चुअली वैसा नहीं है, बहुत ज्यादा प्रेशर है। कल बिनी चक्रवर्ती आई थी जो कोलकाता वेस्ट बंगाली फिल्म्स में एक्टिंग करती हैं और वहां की एक्ट्रेस है, एंड शी वाज टेलिंग अस कितना प्रेशर होता है, अगर आप ये सब चीज नहीं करेंगे तो आपको रोल ही नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं सिस्टम जो है वो ही आपको डिस्टर्ब कर रहा है। करेक्ट, सिस्टम हैज टू बी चेंज्ड। अगर आज सिस्टम नहीं बदला होता तो कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स रिपोर्ट दे चुके होते। I'll just give you one example, Sunilji. When I was giving, nutritional supplements to people who want to become slim or want to have 6-packs, there is one need which you have. You need amino acids. And the amino tablets used to cost somewhere around 6,000 Indian rupees for, 30 days supply. Wherein, just listen to this, the Nariyal Pani, which you have, it has more amino acids than those tablets. And that is natural one. So if you want to do a proper exercise, eat moong dal or any lentils and then go and do exercise. After finishing the exercise, have nariyal pani. This is natural and you will not have troubles. But unfortunately, सेंथिल आप ये बताइए, फिर लोग ऐसा आर्टिफिशियल ऑप्शंस क्यों ले रहे हैं? Why? क्यों ले रहे हैं? शॉर्टकट है and knowledge नहीं है.
ओके, तो इन लोग जैसे एक्टर जो पढ़े लिखे हैं, क्या उनको भी नॉलेज नहीं है इस चीज? No, the problem what happens is, see, the minute you become popular, you minute you become educated, you start disrespecting our herbal things or the knowledge, our grandma ka knowledge ko tu karte hai. And they believe in the Western world. You know, tablets, amino acids. They don't go ये भी हो do a सकता है, research that ये is भी हो there in सकता है। नारियल पानी. नहीं, एक और पॉसिबिलिटी है कि आपको ऑलवेज 2 मिनट्स नूडल्स पसंद होते हैं ना, मैगी सबको पसंद होता है, तो आप 2 मिनट्स नूडल्स में आपने एक टैबलेट लिया और आपको लगता है कि सब मेरे लिए टाइम थोड़ी है। See, taking a tablet and nariyal pani is the same, right? But you don't know, because the minute you become rich, there are a lot of people who come to help you. And these people get the knowledge from the Western world. And they come to help you in exercise, and they say, this is what you are supposed to take. This, and you are busy in doing movies and looking at scriptures, scripts and other stuff. You don't have this knowledge. So you basically go ahead with the guy who is helping you in reducing weight. Okay. Senthil, tell me one thing. ये तो ठीक है. This is, I understand this. अगर because you have followed this case शुरू से, तो आपको क्या लग रहा है? अभी जो मैंने बताया, बहुत सारे लोग हो सकता है डिसएग्री करें, उनको लगे कि शायद ये फर्क नहीं आया है, हम लोग ऐसे ही रीड कर रहे हैं. बट मेरा पॉइंट ये, आपको आप लोगों ने आपने तो फॉलो किया है. जो कुछ भी डिटेल्स मैं कल से दे रहा हूं, जो कूपर हॉस्पिटल के काम करने का तरीका, मुंबई पुलिस के काम करने का तरीका, बॉलीवुड का रिएक्शन, आपको क्या लगता है इन लोगों ने कुछ सीखा है या अभी भी कुछ नहीं सीखा है, ये सिर्फ दिखाने के लिए? It's a great success story. This is what is required. We have made them responsible. They are scared. They are being watched by the common public, and they cannot afford to do mistake. They know that. तो आपका मतलब जो पब्लिक का जो कैंपेन है, जिसकी बात सिद्धार्थ भी कर रहे थे कि ये कैंपेन है जिसके कारण सीबीआई आई, इट्स अ बिग विक्ट्री, और अब पता चलेगा सच क्या है. तो मैं ये पूछ रहा हूं, ये कैंपेन का नतीजा है कि कैंपेन वर्चुअली एक विदाउट एन ओम्बड्समैन, विदाउट टेकिंग द शेप ऑफ एन ओम्बड्समैन या कोई जो विजिलेंट होता है ना, आपको एक आंख है जो नजर भी नहीं आ रही है, फिर भी आपको उसका डर लग रहा है. तो लोगों का जो कैंपेन है वर्चुअली आंख बन गया इन लोगों के ऊपर. इनको लगता है कि कोई देख रहा है. See, not only here, if you run this campaign and if it becomes larger in scale, trust me, we will be able to correct every system. And the best thing I'll tell you, don't take me wrong for this, Sushant ka jo sacrifice hai aur Siddharth ka jo sacrifice hai, it has alerted the younger community of India. And now, please remember, unlike, when you were young and I was young, we were not having so much access to information, correct? Today's youngsters, they are on all social media and they know what is happening. And we have the youngest population in the world, and we are going to be superpower in the next 20 to 30 years. And these youngsters are not going to be scared. And the next revolution in the next 20 years is going to be so serious. And the politicians are going to be scared because the voting and everything is going to be based on what is going to happen in the social media. We are going to discuss on every candidate. So they have to correct themselves. And एक और फर्क है जो मैंने मेंशन नहीं किया, वो ये कि 14 महीने पहले जब सुशांत सिंह राजपूत केस हुआ था, उस वक्त सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था और सोशल मीडिया को कोई इतना एज अ सीरियस न्यूज या जर्नलिस्टिक प्लेटफॉर्म नहीं लेता था. आज लोग सोशल मीडिया के इंफॉर्मेशन को सीरियसली ले रहे हैं, और ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया के इंफॉर्मेशन को सीरियसली लेने लगे तो फिर जेन्युइन जर्नलिस्ट जो है ना, उनको कंपनी पे डिपेंड नहीं होके मेरे जैसे जर्नलिस्ट इंडिपेंडेंटली आके वो बता सकते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है. वरना होता यह है कि यू गो बाय द ऑर्डर्स, योर बॉस इज ऑलवेज राइट. इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड इट, रीड इट अगेन, बिकॉज़ इट्स रिटन दैट बॉस इज always right. So you never speak your mind, you always do what your boss tells. Look at it, Sunil. I'm being honest. I always appreciate and congratulate all the YouTubers. Everybody has a contribution. Some I don't agree, some I agree. It doesn't matter. But I'm appreciating you. I'm being honest with you before I go for sleep. And I always go ahead and watch your channel. I don't look at it as a YouTube channel. I look at it as watching a TV channel, especially yours, right? But earlier, I used to watch Republic TV, Times Now. Over a period of time, I gave up, saying that it's all paid PRs. One is on the right, one is on the left. I'm not getting the true story. I'm being honest. People like you, I should congratulate you coming here. And you are actually, unlike other YouTubers, you are running a news channel here. I'm being honest. Because I'm a journalist, 28 years. You're doing a great job. And unbiased what you put it across, and then leave it to us to decide. It's a fantastic strategy. I think ours is Senthil the only platform. ये
स्पीकअप इंडिया जो है आप लोगों के लिए जो प्लेटफॉर्म मैंने बनाया, ये इकलौता प्लेटफॉर्म है जो आम लोगों को अपॉर्चुनिटी देता है आकर बोलने का। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म कहीं पर भी नहीं है, चाहे चैनल पे चले जाइए, चाहे यूट्यूब पे चले जाइए, कोई भी, क्योंकि आपको मालूम नहीं है किस दिन कौन सा न्यूज बनेगा और क्या वो एंकर या वो जो प्रेजेंटर है वो उसको हैंडल कर पाएगा। वो बाय लक, बिकॉज आई हैव वर्क इन डिफरेंट एरियाज, आई एम एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या पॉलिटिक्स में करना है, क्या स्पोर्ट्स में करना है, क्या एंटरटेनमेंट में करना है, क्या क्राइम में करना है, क्या इन्वेस्टिगेशन में करना है। तो मैं आप लोगों से बात कर पाता हूं, वरना क्या होगा कि हर आदमी का अपना एक स्पेसिफिक फील्ड है, वो उसमें ही कंफर्टेबल होता है, तो वो केवल उसी पे बात कर सकता है। तो आई फील कि ऐसा जो प्लेटफॉर्म है स्पीकअप इंडिया जैसा प्लेटफॉर्म किसी के पास भी अवेलेबल नहीं, किसी चैनल के पास भी अवेलेबल नहीं है कि एक ही एंकर हर दिन डिफरेंट टॉपिक पे आके बात कर ले, ये कुव्वत नहीं है सब में। सो दैट वे आई थिंक दिस इज अ फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म। See, you don't allow people to deviate, you don't allow people to bring in their emotions and then try to, and you are not bothered about the number of likes and subscribers, and there is no abusing happening in your channel. No, and you make sure you bring on people who talk sense, and if there is no controversies out here, you don't bring in some taza khabar just to make sure that your I don't believe in Manohar Kania, actually Manohar Kania, because the reason is it is 100-meter dash or marathon, because people have to understand YouTube and social media is going to be the future medium, because we are not watching television, we are most of the time carrying the mobile phone, and all of us are going to be watching that. So this is going to be the future media, and those who take up this media seriously and do a proper job and looking at the long term, I see that you are going to be like a Republic TV. Thanks a lot. Thanks Senthil, thanks a lot. Just stay on in case you want to, and I'll take Rinku there. Rinku is waiting for long. Just stay on, I'll reconnect you. Prabha, please do join because I can see you. Please come, I want to have your opinion. आपको क्या लग रहा है कि 14 महीने में क्या बदला? Yes, Rinku, please go ahead. नमस्कार सर. Really good. I hope I am audible now. Yes, बिल्कुल साफ. आप हिंदी में बोलिए क्योंकि सेंथिल सब इंग्लिश में बोल गए, तो आप जरा हिंदी में बोलिए. लोग हिंदी में ही बोलूंगी. कंप्लेन करेंगे कि इंग्लिश में ही सारी बात हो. नहीं, आप मेरे लिए हिंदी रखते हैं, और मुझे आज एक बात बोलनी है, आखिरी में मैं बोलूंगी. कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तबीयत से तो उछालो यारों. और यहाँ तो 14 महीने से जाने कितने लोगों ने सामने आकर के यूट्यूब पे, मीडिया में और कितने टीवी चैनल्स ने इतने सारी बातें कही, तो चेंज तो आना ही था. और मैं बहुत हद तक इस बात से सभी से एग्री करती हूँ, सबसे, और जो सेंथिल जी ने भी कहा मैं उससे भी एग्री करती हूँ. और मैंने 2019 में ही मैंने एक अपने फेसबुक पे एक पोस्ट भी लिखा था, उसमें भी मैंने यही कहा था कि आने वाला समय जो है, 5वां स्तंभ जो हम कहते हैं ना, चौथा स्तंभ मीडिया है और 5वां स्तंभ सोशल मीडिया होगा. और सोशल मीडिया इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहां पर कुछ हमें बहुत जबरदस्त चीजें मिलने वाली होगी, क्योंकि वहां पर एक इंडिपेंडेंट थॉट मिलेगा, हर आदमी को अपने बात को एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है. व्हाई फेसबुक इज सो इम्पोर्टेंट, व्हाई इंस्टाग्राम इज गोइंग सो, बिकॉज एवरीबॉडी वांट, हर एक व्यक्ति को चाहता है, हर एक व्यक्ति अपनी बात कहना चाहता है. मैं आपके नजरिए से असहमत हो सकती हूँ, लेकिन आज जो आपने अपना नरेशन दिया उसके बारे में मैं कुछ चीजें जरूर कहना चाहूंगी. पहली बात जो मैंने मतलब मैं 4-5 पॉइंट्स लेना चाहूंगी. पहली बात जो हमने देखा कि दूध का जला छाछ को भी फूक करके पीता है, ये हमने कूपर हॉस्पिटल के रवैये में बदलाव से देखा कि जो कूपर हॉस्पिटल के जो एक व्यक्ति को उसने जो पहले जैसे ट्रीट किया और आज जैसे ट्रीटमेंट दे रहा है, उसमें बहुत बदलाव आया. और ये हम चाहते थे, और ये हर व्यक्ति चाहता है, और ये होना ही चाहिए. ये एक बहुत बड़ी चीज हमने बहुत हासिल नहीं की, ये चीज हमने सही की, दुरुस्त की. जो कि हमने हमारे सिस्टम में जो गलतियां आ जाती हैं उसको हमें कई बार करेक्शन की बहुत जरूरत होती है, उसको सही करने की जरूरत होती है, दुरुस्त करने की जरूरत होती है. और इसके लिए जागरूकता बहुत जरूरी है, इसके लिए आप जैसे लोग बहुत जरूरी है, हमारे जैसे लोग बहुत जरूरी है, और ये समाज को जगना बहुत जरूरी है. तो ये सुशांत सिंह राजपूत केस में ना 14 जून को अगर आप याद करें, आप सब लोग यहाँ प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट हैं, आप यू ऑल नो दिस. अगर आप 14 जून को याद करेंगे तो 14 जून को सुशांत की डेथ की खबर लगभग 2:30 बजे आई थी, करेक्ट? और 4 बजे के आसपास को कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया था. लगभग 4:30 पौने 5 बजे कूपर हॉस्पिटल पहुंचा था. उस वक्त वहां पर
गिने चुने लोग सुशांत को जानने वाले थे और 4 घंटे तक, लगभग 9:30 बजे तक, 9:30 10 बजे तक सुशांत की बॉडी वहां पड़ी हुई थी। सही, किसी ने अटेंड नहीं किया था क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि वो इतना बड़ा स्टार है। आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं था और आपने सबसे बड़ी गलती ये की कि आपने अंडरस्टिमेट कर लिया कि सुशांत सिंह राजपूत कौन है। सुशांत सिंह राजपूत कौन है ये आपको पता ही नहीं था। अगर पता होता तो ऐसी गलती न कूपर हॉस्पिटल करता न मुंबई पुलिस करती। सुशांत सिंह राजपूत के पीछे जो आर्मी थी वो आ रही थी, इसका अंदाजा ही नहीं था। अगर इस आर्मी का अंदाजा होता कूपर हॉस्पिटल को और मुंबई पुलिस को, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, तो आज जिस तरह से वो काम कर रहे हैं सिद्धार्थ शुक्ला केस में, उससे कहीं ज्यादा संजीदगी से काम कर रहे होते। लेकिन सुशांत के केस में तो उसके 4 घंटे तक किसी ने उसको अटेंड तक नहीं किया और ये हकीकत है। दिस इज द फैक्ट एंड दैट इज व्हाट इज पेनफुल कि एक ऐसा स्टार जो इतना बड़ा स्टार हो, जिसने 11 फिल्में की, 7 ब्लॉकबस्टर, वो उसका नाम आप नहीं जानते हो, वो मर गया, उसकी बॉडी आई और बॉडी को आप पहचानते नहीं हो, आप उसको अटेंड नहीं करते हो ठीक से। क्यों? क्योंकि आपको कोई फोन नहीं आया था। आपने उसके पोस्टमार्टम को बेसअप कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको लगा कि कुछ नहीं होगा। आपने टाइम मेंशन नहीं किया। क्यों? कोई सवाल पूछेगा नहीं। आज क्या हुआ? 14 महीने में पब्लिक ने आपकी बखिया उधेड़ के रख दी। आज आपका नाम शक जगाता है, कूपर हॉस्पिटल का नाम ही शक जगा देता है। मैं कितना ही समझा लूं, मैं कुछ भी बोल दूं, फैक्ट यह है कि लोग बोलते हैं कि कूपर हॉस्पिटल ही क्यों, और ये आपके कर्मों का नतीजा है जो आपने 14 जून 2020 को किया था, जिसका नतीजा आज तक आप भुगत रहे हैं। चाहे वो मुंबई पुलिस हो, चाहे कूपर हॉस्पिटल हो, या फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट। मुंबई पुलिस वही पुलिस है जिसने साफ कह दिया कि इसमें कुछ है ही नहीं, हम केस रजिस्टर करेंगे नहीं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट से जुड़े हुए लोग वो हैं जो कहते हैं ऐसे पाताल में चला गया है जहां कुछ मिलेगा ही नहीं। और आज आप बोल रहे हैं कि अगर किसी ने भी एक भी शक जाहिर किया तो हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। ये फर्क कहां से आया? उस दिन समझ में नहीं आ रहा था। उस दिन सुशांत आपके लिए ऑर्डिनरी था, आज वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो आर्मी थी ना, ये आर्मी का आपको अंदाजा नहीं था कि ये आर्मी इतनी स्ट्रांग है, न केवल भारत में, बाहर के बाहर भी। और वो आर्मी जब आई तो आप सुनामी की तरफ बह गए। आपको समझ में नहीं आया कि आप व्हाट हैज हिट यू। दैट्स द रियलिटी। यस, थिंक गो अहेड। सर, ये जो आपने बातें कही, इस बात से 2 बातें हमें सीखने की चाहिए। एक तो ये बात कि हमारे सिस्टम में, जैसे आपने कहा कि उस समय सुशांत को कोई नहीं जानता था। इवन मैं भी टीवी देखती हूँ, मैं भी जानता था। आई नो, हाँ। ये नहीं जानता था रिंकू इतनी बड़ी आर्मी पीछे है, ये बोल रहा हूं। यस, मैं वही कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि हर व्यक्ति को, मैंने सर ये पहले भी सुशांत के केस में भी कहा और मैं आज भी इस बात को कहती हूँ, हमारे यहाँ ये वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए हर व्यक्ति का। सर देखिए, एक जगह मैं वीआईपी हो सकती हूँ, आप मीडिया के पर्सन हैं, अगर आप किसी जगह जाएं, आप मीडिया के हैं, तो आपको बहुत वहां पे तवज्जो दी जाए। नो, आई एम जस्ट टेलिंग यू। आई डोंट एग्री रिंकू, आई डोंट एग्री। आप जो कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं सिर्फ उसमें ऐड करना चाहता हूँ, इस देश में जब कोई मरता है ना, उस वक्त वो वीआईपी टैग खत्म हो जाता है। इस देश में मरे हुए इंसान की कोई अहमियत नहीं समझते हैं लोग। वो जब तक कोई और रिंकू वाला फोन नहीं करेंगी, उनको ये पता ही नहीं चलेगा कि सुशांत सिंह राजपूत है। वो उसको ऐसा ही डिसमिस कर देंगे कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन हल्ला करेगा, जो करना है कर लो। ये केवल दिल्ली मुंबई की कहानी नहीं बता रहा हूं मैं, देश में कहीं पर भी, चाहे उस शहर का बड़ा डॉक्टर हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, कोई भी हो, मेडिकल नेग्लिजेंस इज एक्सट्रीमली कॉमन। और उनको लगता है डॉक्टर्स को कि सवाल उठाएगा कौन। सर, ये मैंने अपने लाइफ में भी बहुत बार एक्सपीरियंस किया है और मैं ये कह रही हूँ कि ये वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ जो जुड़ा हुआ है, आम व्यक्ति जुड़ा हुआ है, और हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि हम ही अपने नेग्लिजेंस से, हम ही किसी को नेग्लेक्ट करते हैं तो हमारा जैसा ही कोई आम व्यक्ति वहां पर सफर करता है, और कहीं कोई और नेग्लेक्ट करता है तो हम सफर करते हैं। सो वी शुड बी वेरी प्रॉम्प्ट। हमें अपने काम को, अपने कर्तव्यों को लेकर के बहुत बहुत जागरूक होने की जरूरत है। अगर आपका जो काम है, अगर आप मीडिया में है, अगर आप बायस्ड होकर न्यूज नहीं देते, तभी आपकी क्रेडिबिलिटी है। अगर एक किसी प्रोफेशन में हूँ, जिस भी प्रोफेशन में हूँ, उस प्रोफेशन को मैं ऑनेस्टली करती हूँ, बिना सोचे कि ये वीआईपी का बच्चा है या इसका बच्चा है या उसका हस्बैंड है या उसकी वाइफ है, तो मैं तभी जस्टिफाई करती हूँ। ये बहुत जरूरी है हर व्यक्ति को सीखने की। ये इंसिडेंट से हमें सीखना चाहिए। उसके अलावा ये रिंकू, सुशांत सिंह राजपूत, हमें मालूम था कि वो बड़ा एक्टर है, राइट? अगर इनको पता होता कि वो इतना बड़ा एक्टर है और सब कुछ फेयर था, मैं कह रहा हूं कि सुशांत सिंह राजपूत में जितने भी सवाल है ना,
हम लोगों ने उठाए, सब बेबुनियाद है, 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ, सब बेकार है। सुशांत सिंह राजपूत के डेथ में कोई क्वेश्चन नहीं था 14 तारीख को, है ना, ऐसे ही मान लेते हैं। तो इसका मतलब क्वेश्चन नहीं होगा तो आप 4 घंटे पड़े रहने दोगे, पड़े रहने देंगे क्या? आज आप सुशांत सिंह राजपूत के नाम से ही डर रहे हो। ये डर अगर उस दिन रहा होता तो थोड़े सवाल कम हो गए होते ना, नहीं? यस सर। सर एक जो बातें और इसमें जोड़ने की है मुझे कि ये जो सुशांत का केस था, इस सुशांत के केस से हमने ये सीखा या सीखना, मुझे लगता है जिस तरह की ये जिस तरह का इनके ऊपर एलिगेशन आ चुका है, एक ब्लॉट आ चुका है, ये दाग धुल नहीं रहा। और मुझे लगता है बहुत हद तक जो इन्होंने वहां पे या मुझे जहां तक लगता है आज तक की तारीख से कि बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है या बहुत बड़ा एक जो उनकी गैर जिम्मेदाराना हरकतें रही हैं, उस दाग को धोने के लिए इस डिटर्जेंट को यूज कर रहे हैं कि भाई हमने ये काम तो बहुत बढ़िया किया, वो दाग भी छोड़ दीजिए। मैंने पहले ही कहा, मैंने अपने नरेशन में ही कहा कि आप इस चीज को भूल जाइए कि आप अगर सिद्धार्थ शुक्ला केस में एसओपीज बदल रहे हैं और एसओपीज फॉलो कर रहे हैं, उससे आपके पुराने कर्म धुल जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। यस ज्योति प्लीज गो अहेड, आप बहुत दिन बाद आई हैं, बोलिए। रिंकू जस्ट स्टे ऑन, आपको मैं दोबारा लूं, जस्ट स्टे ऑन। ज्योति ऑडिबल सर? यस यस यू आर, बोलिए आप। हाँ सर, कल तो मैंने न्यूज देखा ही नहीं, और जब जब आप ही का जो आपने भेजा था वो देखा तो एकदम शॉकिंग, कुछ मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि फिर आखिर ऐसा क्यों हो रहा है हर समय। ठीक है, नेचुरली मैंने आपसे जब बात की तो आपने कहा था इट वाज वेरी शॉकिंग, मुझे पता ही नहीं था, जरा भी नहीं पता था। और जब देखा तो मतलब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था उसके बाद। बस उसके बाद बहुत सारा सर्च किया, देखा इधर उधर, तब जाके लग रहा है कि हाँ नहीं सच में है। लेकिन इस बार ये लोग इतने डरे हुए हैं कि मतलब एक भी पिक, एक भी कुछ भी कहीं से भी नहीं दिख रहा है। एटलीस्ट लास्ट वाला कम से कम उसका लास्ट फेस भी तो दिखना चाहिए। सुशांत का वीडियो तो आया था ना बाहर, तो 2-3 महीने बाद ही आया था, पर फ्यूनरल वाला आया था। करेक्ट, यू आर राइट। इसका जो ज्योति कह रही है सही कह रही है, एक भी पिक्चर नहीं, ये बात फिर एक भी पिक्चर कहीं नहीं है, बॉडी दिख ही नहीं रहा है कहीं से भी। और जब उसको कूपर हॉस्पिटल से निकाल के वैन में भी रखा जा रहा था तो उस समय भी बहुत सारे साइड में मैंने वो दिख नहीं रहा, ऐसा कवर अप किया है ना, वहां पे ऐसे खड़े हो गए सब कि वो आया ही नहीं है पिक्चर में कहीं का भी, तो वो भी नहीं दिख रहा है कि कहाँ से जा रहा है। आ जाएगा, मुझे लगता है हमको इस केस में ना, मुझे क्योंकि कोई फैमिली तरफ से कोई किसी तरह का सवाल नहीं है ज्योति, हमको लगता है हमको वेट एंड वॉच करना चाहिए। जबरदस्ती के सवाल उठा के कोई फायदा नहीं है जब तक कोई कहीं ना कहीं कुछ ना बोल रहा। लेकिन ये बात आप सही कह रही है कि पिक्चर तो आने चाहिए, मीडिया का पिक्चर तो हाँ पिक्चर्स तो आने चाहिए ना। एक भी पिक्चर नहीं, वो भी है ठीक है, वो हर दिन घर में खाना खाता था, हम नहीं बोल रहे कि इसमें गलत है कुछ भी, खाना वो हर दिन घर में खाता था, बट उस दिन तो बाहर खाया था ना। और जब खाया था तो अकेले तो कोई जाके डिनर नहीं करेगा, मेरा मन करेगा हम अकेले जाके डिनर करेंगे, अगर आप बाहर है तो जरूर किसी के साथ होंगे। ये तो पोस्टमार्टम में तो रिवील हो जाएगा। हाँ ये तो होगा ना कि खाया क्या था। मेडिसिन का लेकिन इस बार कूपर ने मना कर दिया, हम रिपोर्ट देंगे ही नहीं, हाँ, ओपिनियन भी नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि इस बार ऐसा छुपा लेंगे कि सोशल मीडिया में जाएगा नहीं, आम पब्लिक को पता चलेगा नहीं, निकालेंगे 1 महीना बाद देंगे तो तब तक धीरे धीरे शांत हो जाएगा। अगर अभी दे देंगे तो लोहा गर्म है ना, अभी देंगे तो फैंस चढ़ जाएंगे, तो अभी तो देंगे नहीं। अगर उस रिपोर्ट में कुछ भी आ गया, एक भी वर्ड इधर उधर हो गया तो पब्लिक तो फिर से पोस्टमार्टम कर देगी। क्योंकि सर एक्टर बस फिल्म वो थिएटर तक रहते हैं, सिनेमा हॉल तक रहते हैं एक्टर जो फिल्म बनाते हैं, यानी कि फिल्म एक्टर। लेकिन ये लोग टीवी एक्टर है, टीवी से अपना जर्नी स्टार्ट किए हैं, तो ये लोग घर घर तक पहुंचे हुए हैं। इनको एक छोटा बच्चा तक पहचानता है कि अरे ये सीरियल में आया था, उसको उसके नाम से नहीं जानेंगे, उसको सीरियल के कैरेक्टर से जानते हैं। Right. तो ये लोग पूरा पहचान अपना रखे हुए। सुशांत के केस में भी ये हुआ था, ये लोग सोचे कि कुछ तो होगा नहीं, ऐसे कर देते हैं बहुत सारा। अब ऐसा छिपा रहे हैं कि मतलब कुछ भी बाहर नहीं आ रहा। मीडिया पूरा सब तरफ से लेने का, कवर करने की कोशिश कर रही, पर कहीं से कुछ भी बाहर नहीं आ रहा। तो मैं ज्योति ये बताइए कि हम लोग ने आज का टॉपिक जो चुना वो ये कि सुशांत, सिद्धार्थ और कूपर हॉस्पिटल इज अ सिंबल। मैं कूपर हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा हूँ, बेसिकली मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ या पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या 14 महीने 20 दिन में कुछ बदला या
हमको जो दिख रहा है वो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ लीपापोती है। एक्चुअली तस्वीर जो हमको दिखाई जा रही है ताकि बताने के लिए कि हम लोग सीरियस हो गए, लेकिन एक्चुअली सीरियस हुए नहीं है, वैसे के वैसे ही है। क्या आपको क्या लग रहा है? मुझे तो यही लग रहा है कि कुछ भी नहीं बदला, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। ओके, पायल एंड एक और बात बोलना, एक और बात बोलना, ये भी मीडिया चैनल का, जितना भी न्यूज चैनल है, वो हम नहीं बोलते कि आप दिखा रहे हैं कुछ भी गलत, कुछ भी सही, ठीक है। अगर सुशांत मरा तो उस समय थ्योरी क्या आया था कि डिप्रेशन से मरा, ठीक है। तो जितना भी न्यूज चैनल है सारे डिप्रेशन थ्योरी वाले न्यूज ये चला रहे, वो चला रहे, ये दवा ये है, डिप्रेशन है तो ऐसे करना चाहिए वैसे। अब सिद्धार्थ शुक्ला हार्ट अटैक से मरा, सारा न्यूज चैनल में हार्ट अटैक को कैसे, कम उम्र में हार्ट अटैक होता है तो कैसे करना चाहिए, मैंने ये न्यूज चैनल वाला लोग चला रहे, मतलब क्या है, आप किसी को कुछ मिल रहा है तो बस उसको चला दें, हो गया स्टार्ट। न्यूज है, न्यूज दिखाइए, फैक्ट दिखाइए, क्या है कुछ मिल नहीं रहा तो बस यही चला दे रहे सारा कुछ। मैं आपको एक चीज बताता हूँ आप लोगों को। सुशांत सिंह राजपूत की जब डेथ हुई थी तो पहले 2 दिन जो नैरेटिव चला था वो ये कि सुशांत, जैसा आप बता रही है ना, that he died because of some mental illness, right? मेंटल इलनेस इन यंग आर्टिस्ट, यंग पीपल क्यों होता है, उस पे मैंने भी 2 दिन शो किया, ओके, 14 और 15 तारीख को, बाकी लोगों ने भी किया। लेकिन मुझे तीसरे दिन जब कंगना रनौत का स्टेटमेंट आया ना, तो आई हैड अ डाउट कि कुछ मामला गड़बड़ है, ओके। अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ लाइक मी कि बाकी मीडिया कुछ नहीं कर सकता। देखिए, मैंने अपनी तरफ से तो कुछ बोला नहीं, मैंने जो कंगना रनौत ने बोला था सिर्फ उसको उठाया और मैंने बोला कि ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, राइट। ये चीज तो मीडिया को भी करना चाहिए था। अगर आपने मान लीजिए उस 2 दिन की बात मानकर छोड़ दिया होता तो न सीबीआई आई होती, न इतने सवाल खड़े हुए होते, न कभी कोई जगता, न आप लोग इकट्ठा हुए होते। ये सिर्फ इसलिए इकट्ठा हुए क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों ने सवाल उठाया, वो इसलिए क्योंकि उनको ये लगा कि सुशांत के साथ गलत हो गया। आज लोग जो सवाल उठा रहे हैं सिद्धार्थ के केस में, वो इसलिए कि सुशांत में हुई गलती कहीं दोबारा रिपीट ना हो जाए, एक और सुशांत ना हो जाए, इसलिए लोग सवाल उठा रहे हैं और इस डर के मारे ये लोग काम कर रहे हैं। वरना अगर सुशांत का केस दब गया होता तो कोई बात ही नहीं कर रहा होता, किसी के लिए कोई स्टोरी नहीं थी। आज हर एक डेथ जो हो रहा है ना, वो स्टोरी बन जा रही है। क्यों? क्योंकि डर लग रहा है सबको। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये जो नैरेटिव्स होते हैं ये सेट कर दिए जाते हैं, लेकिन जब तक सवाल नहीं उठते तभी तक इस नैरेटिव को मानना चाहिए। जिस दिन सवाल उठ जाए आपको सवाल जरूर उठाना चाहिए, क्योंकि सवाल उठाना ही जर्नलिस्ट का काम है। अगर जर्नलिस्ट सवाल उठाना बंद कर दे तो फिर वो जर्नलिस्ट है। सर उसने मेडिसिन क्या लिया जो लास्ट में, वो भी तो क्लियर नहीं हुआ ना? नहीं है, क्लियर नहीं। हाँ, जब सुशांत मरा था डिप्रेशन से तो पूरा ये दवाई खाया, वो दवाई खाया, बहन ने ये दवाई दिया, ऐसे दिया। इतना पढ़ा लिखा एक्टर था, अब वो रात में ऐसे वैसे कोई भी मेडिसिन लेके थोड़ी सो जाएगा। कुछ तो लिया होगा, वो जनरल होगा, वो भी नहीं। उसका हम लोग ने कल भी डिस्कस किया था ये चीज, आप नहीं थी। सिद्धार्थ शुक्ला का पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत क्रिटिकल हो जाता है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल। लेकिन अब जो लग रहा है उसके मुताबिक हमको 1 महीने इंतजार करने पड़ेगा टू गेट हिज पोस्टमार्टम रिपोर्ट, क्योंकि कूपर हॉस्पिटल के मुताबिक पहले आप हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट लाइए, फिर आप विसेरा रिपोर्ट लाइए, उसके बाद हम अपना ओपिनियन देंगे। तो विसेरा रिपोर्ट को आने में 1 महीने लगते हैं, तो फिर 1 महीने बाद बताएंगे कि क्या हुआ था। तब तक तो लोग, और अच्छा एक चीज और भी बताया था, अगर 1 महीने बाद भी आएगा ना तो लोग तो तैयार बैठे हुए हैं, वो फिर उसके पूछेंगे, वो कोई कहीं जाने वाले नहीं है। यस यस पायल बोलिए। लोग तो फंसे हैं अच्छे से। ज्योति रही आप लाइन पे। सर मुझे दो पॉइंट ऑफ व्यू मेरा लग रहा है। एक तो ये लोग इस तरह से दबाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कुछ बाहर ना निकले, और दूसरा ये कि कुछ है नहीं इसलिए ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को दिखा सके देखो कुछ है नहीं। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट है कि पुलिस इतने दिन से सोच रहे हैं कि देखो इस केस में हम लोग इन्वेस्टिगेशन किए लेकिन कुछ निकला ही नहीं, हम लोग तो अपना काम करते हैं, लेकिन एक्चुअल में इस केस में शायद कुछ ना हो, और जिस केस में वो लोग हैं उस केस को दबा देते हैं। तो इन लोगों का, ये लोग भी चूजी है, इन लोगों को पता है कौन सी केस को पब्लिक को दिखाना है और कौन सी केस को दबाना है। और मुझे पुलिस तो इतनी मतलब इस तरह से काम करेंगे नहीं
कि सब पब्लिक को दिखाएंगे, सब सब कुछ को बताएंगे। अगर ऐसा ही होता तो मुंबई पुलिस सुशांत के केस को इस तरह से नहीं करते। वो लोग गलती किए थे, इसलिए इस केस को उस तरह से अपने हिसाब से धीरे धीरे हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि पब्लिक इतना एंगर होकर, जिस तरह से सुशांत के केस में हम लोग बोले थे, इस तरह से शायद सिद्धार्थ के केस में ना बोले। और सर मुझे एक और बात है कि कल जैसे बिनी ने बोले हैं, तो मुझे एक और है जो शायद शरद सक्सेना जी हैं। तो अगर इस बॉडी बिल्डिंग और ये ग्लैमर के चक्कर ना हो तो 70 साल की उम्र में उनको इस तरह से बॉडी बिल्डिंग करने की क्या जरूरत है? Exactly, absolutely correct. So, you made a correct example you have given. शरद सक्सेना का केस हम लोगों ने उठाया था और शरद सक्सेना ने कहा था कि मुझे 72 साल में भी 72 के एज में मुझे बॉडी बिल्ड करना पड़ता है, क्योंकि मुझे 52 दिखना है। अगर मैं 52 नहीं दिखूंगा तो मुझे काम नहीं मिलेगा। तो बॉलीवुड के जो एक स्ट्रक्चर है, मुझे नहीं लगता ये लोग कभी चेंज हो सकते हैं। ये लोग कभी नहीं चेंज होंगे। ये लोग की ज्योति जी ने अभी बोला ना, हाथी के दांत दिखाने खाने के, ये लोग ट्विटर को ऐसे शो ऑफ एक मीडिया डिक्लेयर कर दिए हैं कि सब गैंग बनाकर चलो, सब एक साथ हम लोग ट्विटर में दिखाते हैं हम लोग कितना कॉन्डोलेंस देख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में इन लोगों का पीछे और पार्टी ही कर रहे होंगे। जैसे मस्त है वैसे मस्त है। ये लोग बदलने वाले में से है ही नहीं। ये लोग अपने इंडस्ट्री को तभी बदलेंगे जब वो लोग प्रेशर में रहेंगे। मतलब कोई एक बॉडी रहेगा जब उन लोगों को गाइड करेंगे। क्योंकि हम लोग एक फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे एग्जाम ना हो उस तरह से तो पढ़ाई नहीं करते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। जब भी एग्जाम की टाइम आता है वो लोग पढ़ाई करने की सोचते हैं, नहीं अब तो एग्जाम आ गया, अब तो पढ़ाई करना है। बॉलीवुड का भी यही है। जब तक उन लोगों के ऊपर प्रेशर, एक ऐसा बॉडी ना हो कि क्या सही है क्या गलत है, ये ठीक है ये नहीं है, ये जब तक नहीं बोलेंगे ये लोग अपनी ही धुन में मस्त रहेंगे। ड्रग्स क्या बंद हो चुका है बोलो बॉलीवुड में? क्या नीचे से नहीं आता होगा? कोई चांस ही नहीं है। ड्रग्स के बिना बॉलीवुड चल ही नहीं सकता, ये तो कंक्लूड है। तो मतलब वो लोग अपनी ही धुन में है, अपने ही मस्त में है। पैसे के नहीं आ रहे हैं उन लोगों के पास, आ तो रहे हैं उन लोगों की ठीक अपने हिसाब से। उन लोगों के पास क्या ब्लैक मनी नहीं जा रहा है? जा तो रहा है। क्या सब व्हाइट मनी हम लोगों की तरह है ये एकदम एक महीने में चलो इस तरह से हिसाब करके चले, नहीं तो पागल हो जाएंगे? ऐसा तो नहीं है। अंधाधुन पैसा है उन लोगों के पास। इसलिए उन लोगों को अभी हम लोग अगर सोचे हैं कि सुशांत के प्रेशर में आकर वो लोग बदल गए हैं, इम्पॉसिबल। मैं नहीं मानती हूँ कि ये बॉलीवुड बदल सकता है। हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि कूपर हॉस्पिटल शायद फूक फूक कर कदम ले रहे हैं ताकि पब्लिक और ना भड़के। पुलिस शायद देशमुख जी के प्रेशर में नहीं है, देशमुख जी, इसलिए उनके प्रेशर में ना आकर सही तरह से इन्वेस्टिगेशन की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग फिर भी हम मान सकते हैं, लेकिन बॉलीवुड सुधर गया है ये तो कभी भी नहीं हो सकता है। ये लोग सुधरने वालों में से Nandita Chaudhary is saying, Payal Nandita is saying, when SSR died, he was not in front of media and in contact with public for more than 6 months. But Siddharth was constantly trending because of his activities. तो शायद इसलिए वो लोग ज्यादा केयरफुल है। बट नंदिता, मोर देन दैट, मुझे लगता है सुशांत को इन लोगों ने अंडरस्टिमेट किया और बहुत बड़ी गलती कर दी। सिद्धार्थ के केस में इसलिए चांस नहीं ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने देख लिया कि आप लोग क्या कर सकते हैं। तो वो जो आर्मी है, सुशांत आर्मी है ना, उस सुशांत आर्मी से इनको डर लग रहा है जिसमें आप सब लोग हैं। अदरवाइज ये तो बहुत सारे 40 तो गिना दिए थे ना। 2019 दिसंबर 25 से लेकर लास्ट ईयर तक 40 डेथ्स हुए और बॉलीवुड ने तो बॉदर नहीं किया है और आज भी बॉदर नहीं कर रहा है बॉलीवुड। बॉलीवुड को कोई फिक्र है? लोग मर रहे हैं, कोई फिक्र है? कोई सिस्टम है? किसी को ये एश्योरेंस दिया है कि अगर मान लीजिए कल आपको फिल्म नहीं मिली तो आपके पास 2 करोड़ होगा, आपकी जिंदगी चल जाएगी? लोग सड़क पे आ जाते हैं ना। ये वही नगरी है, ये वही इंडस्ट्री है जहां भारत भूषण जैसा सुपरस्टार अपने टाइम का 1940s का, उसके पास एक भी रुपए नहीं होते। साधना डिड नॉट हैव मनी। निम्मी डाइड एंड निम्मी वाज कैरिड बाय बीएमसी ट्रक। ये वो इंडस्ट्री है क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट की कोई जगह नहीं है। ना ये सेफ्टी देते हैं, ना ये सिक्योरिटी देते हैं और ना ये किसी की रिस्पेक्ट करते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। केवल आगे कॉन्डोलेंस दे देना 2 मिनट, उससे नहीं होता। मैं एग्री करता हूँ पायल आपसे। प्लीज गो अहेड। और एक बात है कि हम लोग जैसे फ्यूचर एक प्लान करते हैं ना, ये बॉलीवुड फ्यूचर के नहीं सोचते हैं क्योंकि वो लोग आज में जीते हैं और आज ही के तरीके से अंधाधुन पैसा खर्च करके चलो आज तो मस्ती में है। और उन लोगों का स्टेटस जो दिखावा, शो ऑफ स्टेटस। आई डोंट एग्री पायल। ये बिल्कुल फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। आप जाइए और देखिए 50s में किस प्रोडक्शन हाउस की फिल्म आ रही थी,
60s में किस प्रोडक्शन हाउस की फिल्म आ रही थी, 70s में किस प्रोडक्शन हाउस की फिल्म आ रही थी, आज किस प्रोडक्शन हाउस की फिल्म आ रही है। जिस प्रोडक्शन हाउस की फिल्म आ रही है वो लगातार 70 साल से चले आ रही है। तो अगर इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की चिंता इनको नहीं होती तो वही प्रोडक्शन हाउस क्यों आता है? नया कौन सा प्रोडक्शन हाउस खड़ा हुआ, कौन सा नया प्रोडक्शन हाउस खड़ा हो गया बड़ा, कौन सा हो रहा है? मैं बताता हूँ। यूएस की जो प्रोडक्शन हाउसेज है ना, वो आके इंडियन प्रोडक्शन हाउस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वरना इंडिया में यानी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में वही प्रोडक्शन हाउस सर्वाइव कर रहे हैं जो पिछले 40 साल से यहाँ पर रूल कर रहे हैं। किसी नए प्रोडक्शन हाउस को आने तो मोनोपोली बिजनेस यस एब्सोल्युटली मोनोपोली बिजनेस किसी को खड़े नहीं होने देते हैं। और ये तो फ्यूचर की चिंता सिर्फ इनको अपने लोगों के लिए है, बाहर वालों के लिए बाहर आज बनाना है, ये लोग आज बनाना है खुद का, आज बनाना है खुद को और फ्यूचर देखना है अपने अपने लोगों का। तो आज भी के लिए अपना बना, फ्यूचर भी मेरा, हाँ फ्यूचर मेरे बच्चों का। हाँ। बस इन लोग वही देख रहे हैं, जो बाहर से आ रहे उनको उड़ा दो, हटा दो सीधा, उनको रखना ही नहीं है, क्योंकि वो लोग तो कुछ है नहीं ना। इन लोग हर समय तो वैसे ही किए। आसिफ बसरा भी जब डेथ हुआ था, आसिफ बसरा का भी एक भी पिक्चर बाहर नहीं आया था, सुशांत के बाद ही तो डेथ हुआ था ना, उसका भी तो कुछ भी नहीं बाहर आया था। ऐसे छुपा के लेकर आसिफ बसरा का डेथ इस साल हुआ, 20 में, हाँ 21 में, तो उसमें भी ऐसा कवर अप करके लेकर के गए थे। इसमें भी कुछ बाहर नहीं आना चाहिए। हर समय सुशांत के बाद से तो हर समय ये लोग उस चीज को वैसा में सब छुपाते ही चल रहे हैं, मीडिया से सब छुपाते चल रहे हैं, क्योंकि जहां मीडिया में आया इन लोग पे उंगली उठ जाएगा। और हमको तो गवर्नमेंट से भी बहुत ज्यादा ये है कि मतलब अरे यंग जा रहे हैं, यंग जनरेशन, अब अगर ध्यान नहीं दिया जाए और अब अगर इस पे कोई सिस्टम नहीं काम करेगा, इन लोग के ऊपर कोई रेगुलेट करने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं आएगा, तब बहुत दिक्कत है सर। क्योंकि ये जो बॉलीवुड में और भी बहुत सारे एक्टर है जो आए दिन मेडिसिन पे ही जिंदा है। अगर एक दिन मेडिसिन ना खाए दूसरा दिन मर जाए, लेकिन उन लोग को कोई मेडिसिन का साइड इफेक्ट नहीं होता। ड्रग्स बोलते हैं, हाँ, लेकिन उन लोग को उसका कुछ साइड इफेक्ट नहीं होता, हो जाता है एकदम यंग जो है उन लोग को हो जाता, सारा कुछ हो जाता सब। जो आउटसाइड से आते हैं उन लोग को तो बहुत सारा एक साथ ही बहुत बीमारी पकड़ लेता है। आजकल तो जितने आप स्टोरी लाइंस में देखेंगे उससे ज्यादा तो हीरो हीरोइंस का शो ऑफ करना, उन लोगों को कैसे प्रेजेंटेबल दिखना है, सिर्फ इसी पे है। स्टोरी लाइन अगर सही तरह से करे तो कोई भी एक्टर, अच्छे एक्टर किसी भी मूवीज को चला सकते हैं। ऐसा ही नहीं कि हमेशा सिर्फ जीरो फिगर और सिक्स पैक एब्स से ही चलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आगे भी पब्लिक देखते हैं। आज के जनरेशन अगर हम लोग उस तरह से, वही तो हम बोल रहे हैं कि पहले के जनरेशन से आज की बहुत चेंज हुए हैं, लेकिन आज भी एजुकेटेड पब्लिक है जो अच्छी चीजें देखना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमेशा सिक्स पैक है और जीरो फिगर ही देखेंगे, ऐसा तो नहीं। लेकिन ये लोग अपना प्रोजेक्ट करके लिए, आप अगर ऑब्जर्व करें ना तो अक्षय कुमार एक साल में 5 फिल्में करते हैं ना। आपको 5 फिल्म करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, एक साल में 5 फिल्म कंप्लीट करने के लिए वो स्टैमिना चाहिए, और वो स्टैमिना आपको नेचुरली ही मिल सकता है। वरना क्या होता है फिर अगर आप शाहरुख खान को कंपेयर करें तो शाहरुख खान की लास्ट फिल्म कब आई थी? वेयर इज शाहरुख खान? शाहरुख खान किंग ऑफ इंडस्ट्री बोलते हैं ना, कब आई थी फिल्म लास्ट, और कौन सी बड़ी हिट हो गई? इन खान की, पहले भी मैंने बोला था, खान की 7 साल में कौन सी फिल्म हिट हो गई है? आमिर खान की पिछली 2 फिल्म नहीं है सर। पहले होता तो याद करके आपको पूरा डिटेल्स दे देती, अब भूल गई। नहीं, भूलने की बात ही नहीं है। 7 साल में आपको याद है कोई? मुझे बता दीजिए ना एक भी फिल्म। रिंकू, आपको याद है कोई खान की फिल्म हिट हुई है? लेकिन वो आज भी एक शहंशाह है, दूसरे भाई हैं, तीसरे मिस्टर परफेक्शनिस्ट हैं। इनकी तूती आज भी बोल रही है, बगैर 7 साल में एक भी फिल्म हिट नहीं, फिर भी अभी की तूती बोलेगी। अक्षय कुमार की फिल्म जिसकी हिट होती है, अजय देवगन की जिसकी फिल्म होती है, वो सेकंड लाइन में सेकंड खड़ा हुआ है। क्यों भाई? वाई? ये आप लोगों ने ही डिसाइड किया कि आप ही की चलती रहेगी, चाहे फिल्म फ्लॉप हो चाहे हिट हो। 55 साल के हो गए हो। Sir, there is an advertisement coming on TV. Some oil, मुझे अभी याद नहीं आता ब्रांड का, मैं ध्यान नहीं देती।
तो उसमें वो सलमान खान इज posing like a husband and the girl is of this age and he is looking like a husband at least, he is looking like some He is- Tauji or maybe all three are 55 plus. Rinku, आप क्या और वो expect कर रहे हो? and he's giving such a dirty expression. I feel how people are tolerating, why people are not writing that please enough, we don't want to see you like that. At least they should learn something from they call ये अमिताभ बच्चन is a superstar. अरे भाई उससे कुछ सीखो तो सही. You should grow gradually. जैसे उम्र के साथ बड़े हो ये मैच, आपके लिए और भी रोल्स होंगे. आप क्यों नहीं वो सोचते? आप हमेशा ही वो रोमांटिक हीरो अमिताभ जी बनेंगे तो अभी वो रोमांटिक हीर 20 अमिताभ जी की, तो हीर अभी 20 भी- की, रांझा 55 के अमिताभ बाद जी समझ तो में आई सॉरी नहीं. सर, हाँ. और सॉरी सर, मैं तो यही कहूंगी कि अमिताभ जी अभी भी किसी को जगह नहीं छोड़ते हैं. उनको अगर 12 फिल्म मिल रहा है तो वो 12 के 12 ही करेंगे. सरस सक्सेना जी को एक भी मूवी नहीं देखेंगे. While you start observing the advertisement, he is now out of advertisement. Amitabh is getting अच्छा out हुआ and गए. नहीं अच्छा हुआ गया नहीं, लेकिन वो खान गैंग is just now taking hold of it. फिर वापस खान गैंग के नहीं, पास क्या है? we- वो we don't आमिर खान want- आ रहा है, सलमान आ रहा है. नहीं, I think Rinku is right. तो हमें वो भी नहीं चाहिए. ऐड आता था ना, वो हम क्या वो भी नहीं पान पराग चाहिए. का. नहीं, एक मिनट, वो कोई किसका, अब तो पान पराग का ऐड कर नहीं सकते हैं, तो आप इलायची का ऐड करते हैं, राइट? तो हाँ. इलायची के ऐड में पहले अजय देवगन आते थे, अब उसमें शाहरुख खान भी आ रहा है. Yes. क्यों भाई? क्या हाँ. केवल अजय देवगन से नहीं बिक रहा था क्या? सर ये वापस इनको मालूम है ना कि अब हमें हमारी फिल्में तो नहीं चल रही, एडवर्टाइजमेंट में ही आ जाए. दिखना है, जो दिखता है वो बिकता है, ये वाला हिसाब है इनका. मैं एक बात बताऊं कि ये जो बातें है हमें समझने की ये बहुत जरूरी है कि एक रैशनलाइजेशन होना चाहिए. कोई आदमी अगर आपके घर एक प्लम्बर आता है, 2 घंटे काम करता है, तो आप उसको 500 रुपए देने में झिझकेंगे नहीं. लेकिन एक आएगा, सिर्फ एक बार ऐसे टोटी घुमा के जाएगा और बोलेगा मुझे 2000 रुपए चाहिए, दैट विल पिंच यू. Likewise, I feel what for these stars are getting money. मैं एक टाइम में बुगी बहुत अच्छा सीरियल शो आता था, मैं देखती थी. मैंने सोचा यार ये जो बुगी के जज हैं, इनको तो कितने मजे हैं. अच्छे कपड़े पहनो, बैठ करके डांस भी देखो, एंटरटेनमेंट भी हो गया, पैसा भी आ गया, कितने मजे हैं इनके. और वैसे ही फिल्म स्टार के थोड़े से कपड़े यहाँ गिरा दिए, थोड़े से कपड़े यहाँ गिरा दिए, और थोड़ी सी इधर पे पोज दे दिए नए कपड़ों में. क्या बुरा है? स्टोरी लाइन इज फ्लॉप और लोग सलमान खान देखने जा रहे हैं, शाहरुख खान देखने जा रहे हैं. व्हाट इज दिस? व्हाट वी वांट टू सी द स्किन. एक्टिंग देखिए भाई. सर अगर ये प्रोडक्शन हाउस इस सेलिब्रिटीज को ना लेकर किसी आम मॉडल को लेंगे तो इनका प्रोडक्ट जो है वो और भी बेटर कर सकते हैं. 1 मिनट पायल, प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग. ये सिस्टम उस हिसाब से नहीं चलता है जिस तरह से आप लोग सोच रहे हैं. एक कोटरी है और वो कोटरी डिसाइड करती है कि आप प्रोडक्ट तो रहो अपने कोटरी में. नहीं, एक मिनट, आपको एक प्रोडक्ट प्रमोट कराना है. हाइपोथेटिकली एक प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट है, इसको प्रमोट कराना है मुझे. ऑलराइट, अब मैं प्रमोट करने के लिए किसके पास जाऊंगा? एड एजेंसी के पास. वो एड एजेंसी का क्लाइंट कौन है? फलाना सेलेब एजेंसी. वो जब सेलेब एजेंसी को देता है, सेलेब एजेंसी उसी को प्रमोट करता है जिसको उसको प्रमोट करना है. तो एड एजेंसी के पास ऑप्शन होगा तब तो वो लेगा. वो एड एजेंसी के पास ऑप्शन ही दिया रहा है, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान. अब उसके पास ऑप्शन इन 3 में से बोलता है चौथे को लाओ, बोलता है वो तो हमारा क्लाइंट ही नहीं है, और अगर हमारे साथ डील नहीं करोगे तो हम बिजनेस ही नहीं देंगे तुमको. उसको बिजनेस की फिक्र है, तो मरता क्या ना करता उन्हीं को कास्ट कर रहा है. अब पब्लिक क्या सोच रही है, ये बात तो पहुंच ही नहीं रही है. तो 55 का राजा, 20 की हीर, आप झेलते रहिए. और कितने दिन पता नहीं सर. अभी ये लोग तो मैंने एंडलेस चल रहे हैं रेस. मैंने आपके प्लेटफॉर्म में पहले भी कहा और मैं आज भी कहती हूँ, एक व्यक्ति जो बहुत नीचे से उठ करके 10 बाय 10 के कमरे में रहता था, उसने अपना एक न्यूज चैनल खड़ा किया और वो इस कोविड टाइम में भी वो पुराने रील्स दिखाता रहा. उसने उन सारे सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू दिखाए. अभी हमारी हॉकी टीम, एक हॉकी टीम की प्लेयर की कहानी इतनी दिल को छूती है. आई वाज क्राइंग लिटरली व्हेन आई वाज लिसनिंग देन व्हेन दे वर सेइंग देयर पेन. And because we could relate, ऐसा हम अपने आसपास सब कुछ देखते हैं, and we feel lucky that we had a family where we had been not brought up in that deprived way, and right now also we are living in a very not very well to do. हम वो BMW गाड़ी में नहीं घूमते, कम से कम हम अपनी जो क्या गाड़ी है हमारी
जो है गाड़ी हमारी, आपके पास कौन सी गाड़ी है वो मालूम नहीं है? मुझे जल्दी ये बोलने में वो रिंकू doesn't remember कि उनके पास गाड़ी कौन सी है। मेरे पास 2 गाड़ी है ना, तो मैं अपनी वाली बोलूं कि उनकी बोलूं, इसीलिए मैं अपनी वाली में, मेरी गाड़ी तो बहुत छोटी है ना, कोई भी है क्या फर्क पड़ता है। वैगन आ रहा है मेरी, तो मुझे अपनी गाड़ी को बोलने में वो लगता है। तो मैं ये कह रही कि हमें अपनी, मतलब हम BMW में नहीं घूमते, लेकिन हम अपनी इज्जत की तो रोटी। रिंकू की तो आवाज गई, जैसे ही प्रभा आई रिंकू की बोलती बंद हो गई। प्रभा बोलिए आप। सुनाई दे रहा है आवाज मेरा? हाँ आपकी आ रही ना, आपने बोलती बंद कर दी रिंकू की। सर हमारे साथ विवेक शर्मा भी जुड़े हुए हैं आज। आई डोंट नो इफ ही लाइक टू कम टू द प्लेटफॉर्म बट आई इनवाइट हिम। If he can just connect, he's here. He's please here. ask him to connect. No, we'll be more than willing to take him. Yeah, we विवेक, will love to have आप him. सुन रहे हैं हमारी आवाज? अगर तो आप please विवेक हैं तो connect प्लीज कीजिए। आप कनेक्ट करिए। विवेक को थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए प्रभा। Please connect. Vivek is a film producer also. He's a director, producer, and he's a very young person, Perfect. very honest, and he's the one who has sent that video yesterday, that very Okay. truthful. विवेक yeah. प्लीज आप कनेक्ट कीजिए। मैंने लिंक शेयर किया आपसे 3-4 बार, मैंने शेयर किया, एक बार और मैं शेयर कर देता हूँ। You can connect using that link. Please connect. Yeah. I am just waiting. Yes, प्रभा, तब तक आप बोलिए, थोड़ा फ्रेम ठीक कीजिए अपना आपको ऊपर गैप बहुत ज्यादा है। Yes, come a bit more prominent. Yes, now go ahead. तब तक विवेक भी आ जाए प्लीज। अच्छा, तो सर ये ना अब लास्ट टाइम वाला जो केस हुआ उसके बाद ये लोग बहुत ही वेल प्रिपेयर्ड हो गए हैं, ये गेम खेल रहे हैं। और ये जो कह रहे हैं ना हम कि ट्विटर में इन लोग अपने कंडोलेंस डाल रहे हैं, ये तो कुछ डाल नहीं रहे। इनके मैनेजर्स, सेक्रेटरीज, इनके सबके डाल रहे हैं। दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। जो इनकी मीडिया टीम है, या ये पूरा एंड सारा स्ट्रैटेजी अब बदल दिए हैं, बिकॉज जानते हैं कि सब लोग बहुत रिएक्ट करेंगे और पूरा गेम ही बदल गया है कि अब ओपन में आ ही नहीं रहा है पोस्टमार्टम का रिपोर्ट। सो दैट इटसेल्फ इज वेरी क्यों नहीं आ रहा है? मैंने बता दिया नहीं आ, रीजन बताया आपके हिसाब से क्यों नहीं आ रहा है? मेरे हिसाब से मैम बिकॉज एक बात प्लानिंग और कि हम लोग इंटरप्ट, क्योंकि ये लोगों को पता है कि हम लोग सर के प्लेटफॉर्म में आ जाएंगे पोस्टमार्टम करने के लिए सबको। एग्जैक्टली लास्ट टाइम भी बहुत हुआ था, और हम लोग यहाँ पे सब भी मोस्टली बिल्कुल दिल से बोलना अलाउड है हम लोग को, और हम लोग बोलते हैं। और हम इतने बेवकूफ थोड़ी बैठे हुए हैं, मतलब यहाँ मीडिया बोल देती है कि हर चीज के बारे में जो थे उसके पीछे चल पड़ते हैं, बट हम ऐसा तो नहीं चल पड़ते हैं। हमें हमारा भी कुछ दिमाग है ना, हमें भी दिख रहा है इस बार इतना कॉशियसली क्यों किया जा रहा है, हर चीज को कवर अप करके किया जा रहा है। क्यों नहीं रिपोर्ट रिलीज हो रहा है प्रभा आपके मुताबिक? तो प्लानिंग चल रहा है ना अंदर ही अंदर। आ गया प्रभा का कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सब शुरू हो गया। यस गो अहेड प्रभा, बोलिए। तो अंदर प्लानिंग चल रहा है, यहाँ भी कुछ नहीं होने वाला सारा। नहीं, यहाँ तो फैमिली रेज नहीं करे तो वी शुड नॉट स्पेकुलेट, बट पॉइंट इज कि क्यों नहीं आ रहा है मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट, आप अनलेस आप ज्यादा केयरफुल प्ले कर रहे हैं, अदरवाइज कोई क्यों नहीं बता रहा है? ऑफ कोर्स नहीं, दे बीइंग वेरी केयरफुल, क्योंकि कुछ तो घपला है। इट्स नॉट अ सीरियस थिंग। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता तो आज दे देते वो। अगर इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड था जितना कल हम लोग बात कर रहे थे कि नहीं आज हमको नहीं बोलना चाहिए, अभी हम लोग को 2-3 दिन चुप होना है, क्योंकि सारे सत्यवादी तो हम यहीं पे सुनील झा के प्लेटफॉर्म पे ही बैठे हुए हैं कि हमें चुप रहना चाहिए। लेकिन हम क्यों चुप रहे हैं? हम क्यों चुप रहे हैं? सत्यवादी नहीं वो बात नहीं है। सत्यवादी नहीं, समझदार बोलिए आप। हाँ, समझदार तो इतने, मतलब हम इतने समझदार कितने दिन बने रहे। आपने बोला था 2-3 दिन रुकने, लेकिन 2-3 दिन तो तब हम रुके ना जब कुछ दिखे होते हुए। इन्होंने तो ये अपने हिसाब से सिस्टम ही बदल देते हैं पूरा अपना। ये देंगे ही नहीं रिपोर्ट, अब बताइए हम क्या करें? अच्छा ठीक है, आपको मैं 5 मिनट देता हूँ। सत्यवादी विड्रॉल, आपको जो बोलना है आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। 5 मिनट दिया आपको। सर अब वो कह रहे हैं कि वो कितना टाइम लगाएंगे, आप ही लोग बता रहे थे। आज हम थोड़ा सा मिस कर गए थे, बट मुझे इतना हम फॉलो किए हैं कि वो निकाल नहीं रहे उसका रिपोर्ट। क्यों नहीं निकाल रहे? हम भी पूछ रहे हैं क्यों नहीं निकाल रहे। आई टोटली एग्री विद दैट गर्ल हु केम एंड स्पोक वेरी वेल about Twitter and what was her name? She was Payal, or she was somebody. Payal is here. Yeah. She really spoke very well, and the other lady also spoke. I'm totally in sync with her. एकदम totally. ये सब प्लानिंग हो चुका है, अंडरग्राउंड प्लानिंग हो चुका है, क्योंकि इनको पता है कि अगर अभी ये कोई भी रिपोर्ट निकाले तो इन पर पब्लिक और चारों तरफ बुरा हाल हो जाएगा।
ये सब अंडरग्राउंड सर चलेगा। एक क्वेश्चन मेरा है, अगर हाँ, बोलो, अगर कुछ हम नहीं आंसर होता तो हम्म। हाँ, अगर मैम अगर ये लोग इतने नीट एंड क्लीन होते तो अगर 2+2 होता तो आज दिखा देते कि देखो 2+2 है, 100%। अगर 2+2 होता तो आज दिख जाता। यहाँ तो पे रोके क्यों हुए हैं? 2+5 किस है, लिए रोके इसलिए हुए नहीं हैं? दिखा रहे हैं। नहीं, आई थिंक पायल वी शुड अगेन आई से दिस, आप जब तक नहीं एक मतलब सवाल नहीं आता hypothetically है ना, हम भी मेरा सोच रहे मेरा हैं। मेरा प्रिंसिपल बहुत क्लियर है। एक सवाल आ जाएगा ना तो मैं उसके उस सवाल के आसपास 5 सवाल पूछ सकता हूँ, लेकिन अगर एक भी सवाल नहीं आएगा तो कैसे सवाल पूछेंगे? एक भी सवाल तो इसलिए या नहीं आ रहा है क्योंकि डेफिनेटली, अंदर में बट प्लानिंग चल रही है। अब वो प्लानिंग क्या है वो तो हम नहीं जा सकते वहां, विश हम जाके बता अगर Planning क्या चल कार्डियक रही है? एक अटैक मिनट, होगा, एक मिनट पायल, प्रभा को मालूम नहीं या प्लानिंग क्या चल रही है, हाँ, हाँ, लेकिन प्रभा को मालूम प्लानिंग चल रही है। प्लानिंग चल रही है, 100% प्लानिंग चल रही है। नहीं मैं अगर मैं सिंपल प्लानिंग नहीं केस बोल रही होता हूँ, तो लेकिन अगर प्लानिंग सिंपल केस होता तो कल रात को वो निकाल देते, आज सुबह निकाल देते। इतना देर क्यों कर रहे यस, हैं? यही मैं बोलना वाई चाहती हूँ, वाई मैं वाई यही सो बोलना मच ऑफ चाहती डिले? हूँ, मे बी दे आर स्केर्ड ऑफ यू, दे क्योंकि आर स्केर्ड ऑफ यू। अगर मान लो निकाल दिया और कुछ गड़बड़ हो तो कल फिर पूरी सुशांत आर्मी लग जाएगी उनके पीछे। मे बी दे आर स्केर्ड, अकॉर्डिंग टू मी दे आर स्केर्ड, डरे हुए वो लोग। दे आर स्कैर्ड, अच्छा है। लेकिन वो बहुत स्ट्रैटेजी के साथ कुछ निकालेंगे, लेकिन उसकी भी तोड़ हमारे पास होगी। तो 1 महीना कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 महीने में जब भी निकाले 1 महीना लगेगा एक उनको महीना पोस्टमार्टम में रिपोर्ट देने आपको में। पता है क्या हो सकता है? क्या? इंडिया है ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हाँ, नहीं अभी आई डोंट थिंक वी शुड बी बहुत कुछ पेशेंट। होता है। आई ऑलवेज होल्ड दिस कि आपको पेशेंस रखना चाहिए। द फैमिली इज सेइंग दैट देयर इज नथिंग, सो वी शुड रिस्पेक्ट द फैमिली टिल द टाइम दे आर नॉट रेजिंग अ डाउट। आई थिंक वी शुड नॉट रेज इट, वी शुड कम इफ एट ऑल द डे there is a question being raised by anybody। सर फैमिली तो नहीं आएगी, जैसे दिशा सालिन में फैमिली नहीं आई थी, यहाँ भी फैमिली नहीं आई, ये भी हम प्रेडिक्ट कोई ना कोई, सुशांत में भी फैमिली नहीं आई थी पहले दिन, कंगना रन आउट आई, राइट? हाँ। तो कंगना ने सवाल उठाया, हमने उठा दिया। कोई ना कोई सवाल उठाना चाहिए जिसके बेसिस पे हम तो उठाएं। कंगना पे तो बेचारी पे इतना थ्रेट आ गया, नहीं आ रही है, वो आ जाएगी, हो सकता है 2-4 दिन में हिम्मत तो ठीक है, जब वो आई, कोई भी, मैं कह रहा हूँ कोई भी एक आदमी अगर सवाल उठाएगा तो हम जरूर उसको उठाएंगे। विवेक हैं क्या, उनको ले लें हम लोग? नहीं विवेक, मैं ये सोच रहा था लेट हो गया, कल उनको लेते हैं प्रॉपर्ली, ठीक है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, दैट विल बी बेटर। yeah, सो वी विल लाइन इट अप प्रॉपर्ली सो दैट बिकॉज़ he will talk about lot of internal things। yes, हम yes, सुनना चाहते हैं तो उनको प्रॉपर्ली वक्त देना जरूरी है। इस वक्त बहुत लेट हो गया है, तो कल का शो स्टार्ट ही उन्हीं से करेंगे, दैट विल बी बेटर। ठीक है ना, we'll work it out that way। या ठीक है, यस पायल प्लीज I गो take अहेड। lead। दैट्स ऑल, यू वांट से? नहीं मुझे सिर्फ यही बोलना है कि 1 महीने इंडिया है, अगर जिया खान के केस इंडिया में नहीं होता तो अब तक सॉल्व हो जाता। इसीलिए 8 साल लगा है। वो क्या नाम है लड़की का, मुझे याद नहीं आ रहा है। 1 मिनट देखो ना, प्रत्युषा बनर्जी, जो हम लोग नॉर्मल नहीं प्रत्युषा नहीं जितने सर, जो जिया खान, प्रत्युषा बनर्जी, वो दिशा सेलिब्रिटी सालियान, नहीं है, दिशा सालियान, नो सेलिब्रिटी, दिव्या भारती, नहीं सेलिब्रिटी नहीं है। कब का केस वो है? जो जिसका जो हैंग किए हैं लड़कों को, 6 लड़कियों के नाम याद नहीं आ रहा लड़की का, जिसका रेप केस है। किस ईयर का? जो दिल्ली में जो रेप केस हुआ, निर्भया, मुझे याद नहीं आ रहा था। तो 8 साल लगा ना उस केस को सॉल्व करने के लिए, कि एटलीस्ट हुआ, ये हम लोग सोच सकते हैं कि एटलीस्ट हुआ है। तो ये जो सेलिब्रिटी वगैरह के केस, ये इसलिए हुआ क्योंकि इसमें स्मॉल पीपल आर इन्वॉल्व। निर्भया नहीं है, निर्भया है, जसिका लाल है, उसके बाद नैना साहनी है, देन प्रियंका क्या था, प्रियदर्शनी मट्टू है, उसके बाद व्हाट वाज दैट, कटारा, नीतीश कटारा है। ये वो केसेस है जहाँ पे हुआ है जस्टिस तो होता है, ऐसा नहीं होता। हाँ, टाइम लगता है लेकिन होता है। लेकिन जिया खान, वही तो हम लोग बोले, जिया खान के केस में अभी तक नहीं हुआ है। सुशांत के केस में 1 साल 2-3 महीने हो गया है, अभी तक सीबीआई कुछ वर्डिक्ट नहीं दिए, कुछ भी नहीं बोले हैं। बड़े लोग तो वही हम बोल रहे हैं कि अगर स्मॉल पीपल होते तो इनरिवील हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर केसेस स्मॉल पीपल के घरों में भी होता है तो तुरंत पोस्टमार्टम होता है, रिपोर्ट्स आ यहाँ जाता है, इंडिया में केसेस मुझे लगता है कि केसेस लोगों के हिसाब से चेंज हो जाता है। इसमें इशू ये है कि अगर वो रिपोर्ट जल्दी दे देंगे तो हम सवाल पूछेंगे जल्दी क्यों दे, अगर नहीं दिया तो हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं दिया। तो दोनों तरफ से वो मारे जा रहे हैं। इतना टाइम 1 मंथ क्यों कौन लगाता है? अब वो लगा रहे हैं क्योंकि उनको डर लग रहा है, आपसे डर लग रहा है।
हाँ, हमसे तो सारे ही डरते हैं। आपसे मतलब नॉट यू, आई से मतलब सुशांत आर्मी से I डरो। know. Yeah. They are scared of that. Why? Kritika is Why? asking, do you think that there is a foul play? She's asking me. I don't think. According to me, I have no locus standi to think at all. मेरे हिसाब से जो circumstances हैं और जो statements हैं, जो facts हैं, वो indicate नहीं करते हैं foul play का। लेकिन ये तो वो है जो हमको नजर आ रहा है। कल अगर कोई खड़ा हो जाता है, बोलता है कि ये हुआ था, तो फिर हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है बल्कि सवाल पूछने का। तो कृतिका, the answer to your question is no, as on date. Tomorrow there are questions raised. I am free to change my position. Yes. Anything else, Payal? Sir, no, I take my. Okay. Yep, Prabha, you want to say something? नहीं, बस हमारा तो Thanks अभी. a lot for coming. Okay. Tomorrow we shall. Yeah. To I'll let's also line. coordinate and put him across with Perfect. you. Okay. Thanks. So that's I think that's about it. I don't think will stretch beyond this. That's the story where it stand. मेरे मुताबिक जो मेरा कंक्लूजन है वो ये कि आप लोगों ने जो प्रेशर बनाया है पिछले 14 महीने 20 दिन के दौरान, उसका नतीजा है इनसे ना तो निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। ये रिपोर्ट क्यों नहीं दी गई? वो इसलिए, अगर दिया तो मारे गए, नहीं दिया तो भी मारे जा रहे हैं, क्योंकि सवाल फिर भी उठ रहे हैं कि आखिर इस केस में रिपोर्ट क्यों नहीं दिया जा रहा है, जबकि नॉर्मली ऐसे केस में तुरंत रिपोर्ट आ जाता है, क्योंकि आपके मुताबिक इसमें कोई फाउल प्ले नहीं है। अगर कोई फाउल प्ले नहीं है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, जो कि ऐसा ही दिख रहा है, और ये सिंपल केस ऑफ डेथ ड्यू टू हार्ट अटैक है, जो फैमिली भी कह रही है, फ्रेंड्स भी कह रहे हैं और हम भी मानते हैं, तो फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने में दिक्कत क्यों है? लेकिन डर इस बात का कि अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक भी वर्ड गलत आ गया तो ये जो सुशांत आर्मी है वो 50,000 सवाल लेकर आपके पीछे पड़ जाएगी। और यही वो डर है जिसके कारण ऊपर हॉस्पिटल और मुंबई पुलिस दोनों दूध के जले हैं, छाछ भी फूक फूक कर पी रहे हैं। ऑन दैट नोट, I take leave. Thank you so much for connecting. Please do share the video, like the video, and also subscribe to the YouTube channel if you haven't done yet. And also press the bell icon, because that's the way you can be notified. Stay connected. I'll be back with something more interesting. And if there is a single question raised by anybody, we are not bound by what anyone says. As a journalist, I have a right to ask questions, and I will not hesitate asking any question, whether someone likes or not. That's their problem. But for that to happen, someone must come who has a locus standi to ask questions. If they don't, then don't unnecessarily speculate or unnecessarily ask questions, because the family is the best judge and we need to respect the family. But if there's a question asked, then everything is set aside. We will be free to ask questions. Till then, just stay quiet and be patient. Thanks a lot for watching. Stay connected. Stay safe.